Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं पहले। जैसे अभी रिसेंटली एम्स दिल्ली को, इनके कैंपस को टोबैको फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर बात कर दे प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम की, इसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री विरासत का समावर्धन, और इसको पीएम विकास स्कीम नाम से भी जाना गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नेम चेंज याद रखेंगे। 8 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बात करें तो कहाँ पर होगा? ये भोपाल में होगा, भोपाल मध्य प्रदेश में। और अगर याद हो तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में ही आपका पहला ड्रोन मेला भी होना था। 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की बात करें तो कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल को। हिंदुजा ग्रुप इन्वेस्ट करेगा 35,000 करोड़ रुपए इन महाराष्ट्र अक्रॉस 11 सेक्टर्स। फिर बात करें पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किए प्रोजेक्ट्स वर्थ 6,800 करोड़ रुपीस इन त्रिपुरा, मेघालय। इंडिया एंड श्रीलंका लॉन्च करेंगे फेरी सर्विसेज बिटवीन कानकेशथुराई एंड पौंडीचेरी इन जैन 2023। देन CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का 1 वीक 1 लैब कंट्री वाइड कैंपेन लॉन्च हुआ 6 जनवरी 2023 से इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक टास्क फोर्स फॉर्म की टू प्रिवेंट ऑनलाइन गैम्बलिंग इन स्टेट। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम बजाज अलायंस। गवर्नमेंट अकॉर्ड्स अप्रूवल फॉर सेटिंग अप 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स। असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया औरंदोई 2.0 स्कीम को, मार्क करेंगे ये भी। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड को। ठीक है, ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किसके द्वारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 की बात करें तो पुडुचेरी इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है? पुडुचेरी। इंडिया इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फोरम मीटिंग की बात करें तो कहाँ पर हुई? पोर्ट ब्लेयर में। फ्यूल बडी, इन्होंने पार्टनर किया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, IOCL के साथ, फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ऑटोमेटिव ल्यूब्रिकेंट्स। गेल
इन्होंने पार्टनर किया जापान के मित्सुई ओएसके के साथ फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर एलएनजी कैरियर के लिए। इवन अभी एक न्यूज़ आई थी रिसेंटली कि रशिया अपने जो गैस के नेचुरल गैस का जो एक्सपोर्ट करेगी उसके रिटर्न में वो करेंसी की जगह अब गोल्ड को लेने की बात कर रही है। देन वादनगर टाउन, मोधेरा सन टेम्पल, इनको ऐड किया गया यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में। और जो आपका वादनगर टाउन है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी होम टाउन रहेगा। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा, ये वो मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट बन गए हैं 2022 में। हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन्हें गोल्डन बॉय भी बोला जाता है क्योंकि गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक गेम्स में। जेवलिन थ्रो इनका स्पोर्ट्स रहेगा। इंडिया वन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तीसरी बार लगातार इंडिया ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है। अनुराग ठाकुर की बात करें, इन्होंने अनवेल किया हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी को न्यू दिल्ली में। राफेल नडाल एंड ईगा स्वातेक, इनको क्राउन किया गया ITF वर्ल्ड चैंपियन 2022। अर्जेंटीना वन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 चैंपियनशिप। जयपुर पिंक पैंथर्स, इन्होंने 9th प्रो कबड्डी लीग टाइटल को जीता। इंडियन वीमेंस हॉकी टीम वन द FIH नेशंस कप। चाहत अरोरा, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड सेट किया इन द वीमेंस 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक। करीम बेंजिमा ने अनाउंस किया रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल। याद रखेंगे। और ये करीम बेंजिमा फ्रांस से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना था फाइनल में। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया टू विन द 2022 कतर वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ पर हुआ था, कतर में। और अर्जेंटीना की ये थर्ड विक्ट्री रहेगी बाय वर्ल्ड कप की, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप की। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस। नेशनल गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और किन की मेमोरी में आप देख सकते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की हम बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाता है वीर बाल दिवस। याद रखेंगे पहली बार ये फर्स्ट एडिशन है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वीर बाल दिवस का 2022 में। कब? 26 दिसंबर 2022 को हमने ऑब्जर्व किया वीर बाल दिवस। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिकेट के। हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शेन वॉर्न, जिनका रिसेंटली निधन हो गया था, तो अभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि जो अवार्ड है टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, उसका नाम चेंज करके हम रख देते हैं शेन वॉर्न टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। इस नाम से ये अवार्ड दिया जाएगा टू ऑनर शेन वॉर्न। नेक्स्ट पे आते हैं गरुड़ा एरोस्पेस। गरुड़ा एरोस्पेस आपकी चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड ये आपकी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगी। अभी रिसेंटली गरुड़ा एरोस्पेस वो पहली ड्रोन कंपनी बनी है जिनको DGCA का डबल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया फॉर किसान ड्रोन्स के लिए इनको ये डबल सर्टिफिकेशन दिया गया है DGCA द्वारा। और ये जो सर्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि जो क्वालिटी चेक के लिए, जो आपकी क्वालिटी है वो कैसी क्वालिटी है ड्रोन्स की, उस पे चेक रखने के लिए, उसी के साथ साथ फिर आपका जो प्रोडक्ट से बनाई गई है इसके ऊपर रिगरस टेस्टिंग की जाएगी कि क्या ये वेरियस कंडीशंस में सेट हो पाती हैं या नहीं हो पाती, उसके बेसिस पे ही ये सर्टिफिकेशंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लद्दाख। लद्दाख ने सेलिब्रेट किया लोसार फेस्टिवल टू मार्क लद्दाखी न्यू ईयर। लोसर फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? लद्दाख में किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन्होंने अभी रिसेंटली अप्रूवल दिया टू प्रोक्योर प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल फॉर आर्म्ड फोर्सेस। ये जो प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल हैं इनकी स्पीड रहेगी 2000 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 150 से लेके 500 किलोमीटर तक की इनकी रेंज रहेगी। ये प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल है। और अगर इनकी मैं बात करूं तो ये सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल रहेंगी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है, प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कंज्यूमर डे को। फिर इसके बाद हम बात करें तो वर्ल्ड के टॉप 5 हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स की मैं बात करूं तो पहले नंबर पे आती हैं नाओमी ओसाका। ये जापान से बिलोंग करती हैं, टेनिस स्पोर्ट्स खेलती हैं और इनकी अर्निंग रहेगी कुछ $51.1 मिलियन की। सेरेना विलियम्स की मैं बात करूं, ये USA से बिलोंग करती हैं, ये भी टेनिस खेलती हैं और इनकी अर्निंग $41.3 मिलियन के करीब रहेगी। एलिन जियू,
ये चाइना की हैं, फ्री स्टाइल स्कीइंग करती हैं और $20.1 मिलियन की इनकी अर्निंग रहेगी। इंडिया की मैं अगर बात करूं तो इंडिया से पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन खेलती हैं और ये 12th पोजीशन पे रहेंगी इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं मीराबाई चानू की। इन्होंने रिसेंटली अभी सिल्वर मेडल जीता ड्यूरिंग द IWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और ये कहाँ पर हुई थी? कोलंबिया में हुई थी। यहाँ पर इन्होंने आपका कोलंबिया में सिल्वर मेडल जीता ड्यूरिंग द IWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और मीराबाई चानू किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? वेट लिफ्टिंग से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड को किसको दिया गया अभी रिसेंटली, किस हेडक्वार्टर या किस बिल्डिंग को, किस इंफ्रास्ट्रक्चर को आपका ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग गृहा एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 के? तो वो रहेगा आपका UIDAI हेडक्वार्टर बिल्डिंग। इनको टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया एज द विनर ऑफ दिस अवार्ड ड्यूरिंग द गृहा एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 के लिए। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे आपका 22 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ S रामानुजन। और याद रखेंगे काफ़ी फेमस रियोन्स मैथमेटिशियन हैं ये, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा 2012 को नेशनल मैथमेटिक्स ईयर डिक्लेयर किया गया था। और पहला एडिशन ऑफ दिस नेशनल मैथमेटिक्स डे भी 22 दिसंबर 2022 को ही डिक्लेयर करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर बात करते हैं गमा का एक्सपोनेंट HR केशव मूर्ति हैज़ रिसेंटली पास्ट। अभी आप इनको देख सकते हैं, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है गमा का। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और इनका रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है INS अरनाला। ये इंडिया का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप रहेगा INS अरनाला। याद रखेंगे इंडिया का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप क्या है? INS अरनाला। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे पुराने करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड DRDO। इन दोनों के बीच में अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ ताकि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जा सके फॉर हिली एरियाज। मतलब जो पहाड़ वाले एरियाज हैं वहाँ पर जो आपके मान लो अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या हो गया कि मान लो एकदम भूकंप आ गया, ठीक है, या फिर आप पहाड़ी एरियाज के अलावा देखें तो कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे ग्लेशियर बर्स्ट हो गया पहाड़ पर, आप देखेंगे ऐसे जो जियो हजार्ड्स हैं, एवेलॉन्च आ गया, लैंडस्लाइड्स आ गई, तो ऐसे लॉन्च को ऐसे इवेंट्स के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने के लिए ताकि पहले से ही हम प्रिपेयर हो सकें एंड आगे फ्यूचर में कोई भी ऐसी दिक्कत आए तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहें और हम पहले से ही उसको प्रेडिक्ट कर सकें, उसका रिस्क असेसमेंट कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें लोगों के बीच में, और पहले से ही एक प्रॉपर प्लान को हम डेवलप कर सकें ताकि जो कैजुअलिटीज़ हों वो कम से कम हो। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा भी ये MOU साइन किया गया विद DRDO फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर यहीं पे मैं DRDO की बात करूं, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन कौन रहेंगे? G सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 10th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सा एडिशन का नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल अभी हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में न्यू दिल्ली में? तो वो रहेगा 10th एडिशन का। दूसरा क्वेश्चन 10th एडिशन का कौन सा फेस्टिवल अभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था न्यू दिल्ली में? तो दूसरा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, उसका नाम रहेगा। फिर पूछेंगे कि 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था न्यू दिल्ली में? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, तीसरा। और फिर कि 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, रीजन क्या है? कि कल्चर को और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन द रीजन ये हम ऑब्जर्व करते हैं। तो फिफ्थ क्या हो गया? कल्चर एंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते हैं। इनॉग्रेट किसके द्वारा कराया गया था ये फेस्टिवल? नारायण राणे जी के द्वारा, जो कि हमारे MSME मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये 4 दिन का फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। कब से कब तक हुआ? 23 से लेके 26 दिसंबर के बीच में ये ऑब्जर्व कराया गया न्यू दिल्ली में।
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अब हमने देखा ये 10वां एडिशन था, तो मतलब जो इसका पहला एडिशन रहा होगा ना, जो फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया गया होगा, 2013 में ऑब्जर्व किया गया था ये फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक, और एक चीज़ और याद रखेंगे, इससे पहले जो लास्ट 2 एडिशंस थे ना, एक गुवाहाटी में हुआ था असम में ड्यू टू आप, और वर्चुअली हुआ था ड्यू टू स्पाइक इन कोविड-19 केसेस इन दिल्ली, तो ये दोनों वर्चुअली हुए थे। फिर यहीं पे आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में हम देखते हैं ओपन माइक सेशंस होते हैं, फैशन शोज होते हैं, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, डांस, ड्रामा, यहीं पर आर्ट एंड फोटोग्राफी एग्जीबिशन को बढ़ावा देने के लिए। फिर आप देखेंगे छोटे छोटे हैंडलूम प्रोडक्ट्स, ज्वेलरीज जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं आर्टिशंस, हैंडीक्राफ्ट, और आपके बहुत सारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स भी, जिससे क्या होगा कि जो लोकल आर्टिशंस हैं, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो SC/ST कास्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स को शोकास करने के लिए और उन अपनी स्किल्स दिखाने के लिए, ताकि उनके लिए भी एक नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डेवलप की जा सके। इसीलिए ये आपका नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, जिसका 10वां एडिशन अभी ऑब्जर्व किया गया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अभी प्रोजेक्ट को अप्रूव किया वर्थ 2700 करोड़ रुपीस फॉर डेवलपिंग सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द गंगा बेसिन। बेसिकली क्या है कि आपकी गंगा को क्लीन करने के लिए अभी यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट 12 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई, जो कि अराउंड 2700 करोड़ रुपीस की वर्थ के करीब होंगे। गंगा बेसिन में इनको डेवलप किया जाएगा। एंड एक चीज़ और याद रखेंगे, जो ये आपकी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो मेन चेयरपर्सन है वो कौन है? जी अशोक कुमार। ठीक है, याद रखेंगे इनको। नेक्स्ट पे आ जाते हैं उजाला स्कीम। उजाला स्कीम क्या है? उजाला स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी ताकि हर घर में आपकी LPG गैस को पहुंचाया जा सके। यहाँ पर क्या है कि हम जानते हैं सिलेंडर काफ़ी कॉस्टली होता है, तो वहाँ पर आपके 200 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड कराने की बात की गई सरकार के द्वारा पर सिलेंडर, और एक साल में ऐसे आप 12 सिलेंडर ले सकते हैं जिस पे आपको ये सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस उजाला स्कीम। अभी न्यूज़ में क्यों है वापस से उजाला स्कीम? क्योंकि इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया फॉर मोर देन 1 ईयर। द बजट में ऑल्सो एक्सटेंड द उजाला स्कीम बियॉन्ड March 2023 to take domestic gas to the uncovered areas in the states and union territories। मतलब जो अनकवर्ड एरियाज है ना, वहाँ पर भी ले जाने के लिए और 100% LPG कवरेज को कवर करने के लिए ये स्टेप लिया गया। ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है टू कंटिन्यू द स्कीम दैट विल प्रोवाइड 1600 रुपये का जो आपका एक सिलेंडर होता है। इसी के साथ साथ एक फ्री रिफिल भी प्रोवाइड किया जाएगा, और इस फ्री रिफिल के साथ साथ एक गैस स्टोव भी प्रोवाइड किया जाएगा टू द वीमेन जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती हैं फैमिलीज, उनके लिए। इससे क्या होगा, उनके पास चूल्हा भी हो गया, उनके पास सिलेंडर भी हो गया, गैस भी हो गई, ठीक है, और वो अपना फिर खाना ईजिली यहाँ से बना सकते हैं। ऑलराइट, तो याद रखेंगे इसको, एक ऑल ओवर इंडिया एक गैस को घर घर तक पहुँचाने के लिए LPG को ये स्टेप लिया गया है। ठीक, इसी में अगर हम बात करें द एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम फॉर द अनदर फिस्कल एम्स टू इम्प्रूव द पेनिट्रेशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, और मेघालय आपका वर्स्ट परफॉर्मर रहते हैं इंडिया में इन द LPG कवरेज, फॉलोड बाय त्रिपुरा, झारखंड एंड गुजरात। यहीं पे अगर मैं प्रधानमंत्री उजाला योजना की बात करूं, तो जो फर्स्ट एडिशन था ना, ये 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिर इसके बाद याद रखेंगे जो सेकंड आपकी था उजाला 2.0, इसको लॉन्च किया गया था 10 अगस्त 2021 को, जिसका एम था टू रीच हाउस होल्ड्स मिस्ड आउट इन द फर्स्ट फेज। जो फर्स्ट फेज में मिस आउट हो गए थे, सेकंड फेज में उसको कवर करने की बात की गई। और फिर हमने देखा इन्होंने अनाउंस किया 200 रुपये की सब्सिडी ऑफ 12 सिलेंडर्स पर ईयर टू 90 मिलियन बेनिफिशरीज ऑफ द उजाला स्कीम फॉर फिस्कल ईयर 2023। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोटानिकल गार्डन्स। इनको बनाया गया था ताकि यहाँ पर जो आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, जो एंडेमिक प्लांट्स हैं, उनको यहाँ पे कंजर्व किया जाए, उनको रखा जाए और उनको सेव किया जाए। लेकिन जो इसके इफेक्ट्स थे बोटानिकल गार्डन्स के, वो फेल हुए हैं, और यहाँ पे कुछ 48 करोड़ रुपीस खर्च करे गए थे, वो भी सारे एक तरीके से कह सकें तो बर्बाद गए हैं। ठीक, अभी एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर ईयर एंडेड मार्च 2021
फॉर फिजिकल ईयर 2020 टू 2021। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो असिस्टेंस टू बोटानिकल गार्डन प्रोवाइड की गई थी स्कीम, एबीजी स्कीम लॉन्च की गई थी, असिस्टेंस टू बोटानिकल गार्डन, इस स्कीम के अंडर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च की गई थी, इन्होंने 48 करोड़ रुपीस का बजट अप्रूव किया था ताकि जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, एंडेमिक प्लांट्स हैं, उनको कंजर्व किया जा सके इंडिया में। लेकिन ये जो स्कीम है जो कि इम्प्लीमेंट की गई थी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ये वॉज नॉट अ सक्सेसफुल स्कीम, और यहाँ पे आप देखेंगे कि उनको कंजर्व करने में वो नाकाम रहे हैं। ठीक, और ये असिस्टेंस टू बोटेनिक गार्डन आपकी स्कीम 1992 में इंट्रोड्यूस की गई थी टू कंजर्व और टू प्रमोट एक्स सीतु कंजर्वेशन। नेक्स्ट हम बात करें इंटरनेशनल न्यूज़ की, तो इंडिया ने, अगर हम देखो अभी ना यूके की सीईआरबी क्या है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, जो यूके बेस्ड सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च ने अभी प्रोजेक्ट किया कि 2032 से 2037 के बीच में इंडिया 5th स्पॉट से सीधा आपका 3rd स्पॉट पे आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो मतलब वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया बाय 2037। अभी करंटली क्या है, 5th पोजीशन पे है इंडिया। आप देखेंगे 2027 में ये 4th पोजीशन पे आ जाएगा, एंड 2032 से 37 के बीच में ये 3rd पोजीशन पे आ जाएगा इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल। ये आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में अभी करंटली इंडिया 5th पोजीशन पे है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे 2032 से 37 इंडिया 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। यहीं पर आप ड्रास्टिकली एक और चेंज देखेंगे कि जो चाइना है 2037 तक 1st पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड की, और वहीं पे यूएस 2nd पोजीशन पे आ जाएगा, 3rd पे इंडिया। ठीक, सर्ब की बात करूं, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की, तो चेयरमैन कौन है, मार्टिन पियर्स, हेडक्वार्टर रहेगा लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और एक चीज और, जो ये वेल्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 की, ये 14th एडिशन रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सेबी की। सेबी एक्सपेंड्स द कमिटी ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू, मतलब अपने साइबर सिक्योर करने के लिए, हम देखते हैं जो साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, उनको सेव करने के लिए, उनको कम करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, कि लोगों का पैसा भी कोई साइबर फ्रॉड की तरह ना चला जाए, कोई अटैक ना हो जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साइबर सिक्योरिटी को एक्सपेंड करने की यहाँ पे बात की गई। जो पहले 6 मेंबर की कमेटी थी, अब उसको 8 मेंबर की कमेटी बना दिया गया है, हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी ऑन साइबर सिक्योरिटी। इसके चेयरमैन कौन रहेंगे, नवीन कुमार सिंह। और इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कमेटी की बात करें, इनके चेयरपर्सन रहेंगे प्रोफेसर एच कृष्ण मूर्ति ऑफ IISc बैंगलोर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एनटीपीसी और टेक्नीमॉन्ट, इन दोनों के द्वारा एक अभी MOU साइन किया गया टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी टू डेवलप ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन। ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अभी एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, किनके बीच में, एनटीपीसी और टेक्नीमॉन्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू जॉइंटली इवेल्युएट एंड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी टू डेवलप कमर्शियल स्केल ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी। कहाँ पर, एनटीपीसी प्रोजेक्ट इन इंडिया। इसके अंडर जो ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट्स है ना, इसमें क्या है, देयर विल बी कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू ग्रीन फ्यूल, जिससे क्या होगा, कार्बन को कैप्चर किया जाएगा फ्रॉम एनटीपीसी पावर प्लांट्स और उसको फिर ग्रीन मेथनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा। ग्रीन मेथनॉल के बहुत वाइड ऑफ रेंज एप्लीकेशंस हैं, जैसे बेस मटेरियल सर्व करना इन द केमिकल इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी को सेव करने के लिए, फिर इसको ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इसको कंसिडर किया जा सकता है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मैरीटाइम फ्यूल एप्लीकेशन। यहीं पे अगर मैं एनटीपीसी की बात करूँ तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एल&टी सिक्योर सिग्निफिकेंट EPC ऑर्डर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। EPC क्या है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स। ठीक है, तो एल&टी ने अभी मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स को प्रोक्योर किया, वर्थ अराउंड 2500 करोड़ रुपीस के ये ऑर्डर्स रहेंगे। एल&टी कंस्ट्रक्शन ये एक डिवीजन है एल&टी लिमिटेड की, जो कि मेजर इंडियन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस
फर्म रहेगी। अकॉर्डिंग टू दिस L&T ऑर्डर्स वर्थ अराउंड 100,000 करोड़ रुपीज टू 2500 करोड़ रुपीज आर क्लासिफाइड एज सिग्निफिकेंट। और यहीं पे एक एग्जांपल दूँ तो 900 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट डेवलप करने की बात की गई ओमकारेश्वर डैम रिजर्वेयर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाटा स्टील एंड टूटर हाइपरलूप जॉइन हैंड्स टू डेवलप हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। बेसिकली हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स, अगर आपको एक लोकेशन से बी लोकेशन में जाना है, हम जानते हैं आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया, लेकिन अगर हमें मल्टीपल एक ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना है तो या तो हम एयरप्लेन लेते हैं, आप प्लेन्स के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप अंडरग्राउंड हम हाइपरलूप के थ्रू भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपका एक वैक्यूम टाइप एरिया कवर किया जाता है और टनल्स या ट्यूब बनाई जाती है, जिससे ए लोकेशन से बी लोकेशन आप काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे ट्रैवल कर पाएंगे। एज यहाँ पर वैक्यूम रहेगा तो आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगी ही नहीं मिलेगी, तो इससे जो ट्रैवल होगा वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसी के लिए टाटा स्टील एंड टूटर हाइपरलूप ने डिज़ाइन किया है साइन एन एग्रीमेंट टू जॉइंटली वर्क ऑन द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। इस पार्टनरशिप की मदद से डिज़ाइन कराया जाएगा, डेवलप एंड स्केल अप द टेक्नोलॉजी फॉर कमर्शियलाइजेशन दैट विल फोकस ऑन द की चैलेंजेस ऑफ डिज़ाइन एंड मटेरियल selection. Phase 1 work will take place on the 50-meter test track at IIT Madras, and subsequently the work to achieve a 10-kilometer track will be completed in the phase 2 and phase 3, involving a consortium of other industry partners from the automotive, construction and engineering sectors. Hyperloop is a future option for high-speed, low-cost, sustainable transport system for both passengers and cargoes, having key elements that include tubes, pods, propulsion systems and track. नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रभु चंद्र मिश्रा। इनको ऑनर किया गया अटल सम्मान अवार्ड से न्यू दिल्ली में। आई रिपीट, प्रभु चंद्र मिश्रा को अभी ऑनर किया गया अटल सम्मान अवार्ड से इन न्यू दिल्ली। साइंस एंड रिसर्च फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया जाता है और इनको अवार्ड दिया गया ये ड्यूरिंग द 9th अटल सम्मान समारोह, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के दिन दिया गया था एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। इनको ऑनर किया गया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च, याद रखेंगे। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, इनका जो वर्किंग एरिया था वो था स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन इन फर्टिलिटी, स्पेशली इन वीमेन इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑल्सो फील्ड्स। ठीक, फिर इसी के साथ साथ क्या क्या चीज़ याद रखनी है। प्रभु चंद्र मिश्रा, इनको क्या ऑनर किया गया, अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया, एंड ड्यूरिंग द 9th अटल सम्मान समारोह ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर, ड्यूरिंग दिस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट पे बात करते हैं अनिल कुमार लाहौटी। इनको अपॉइंट किया गया एज द CEO एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। आई रिपीट, अनिल कुमार लाहौटी को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे विनय कुमार त्रिपाठी को। विनय कुमार त्रिपाठी को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू CEO एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इनका जो टर्म है वो 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं संतोष यादव। संतोष यादव को अपॉइंट किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन, एंड सुभाशीष पांडा को अपॉइंट किया गया एज द DDA के वाइस चेयरमैन। हाईली इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस ऑर्डर्स ने संतोष कुमार यादव, जो कि एक 1995 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं ऑफ यूपी कैडर, इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एंड जो संतोष कुमार यादव हैं ये करंटली वर्क कर रहे हैं एज एन एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और सुभाशीष पांडा जो 1997 बैच के IAS ऑफिसर हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश कैडर, इनको अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरमैन ऑफ द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट बात करते हैं IIT गुवाहाटी एंड IIT बॉम्बे। इन दोनों ने अभी एक MOU साइन किया बेसिकली यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टू पार्टनर टू बिल्ड सेंसर फॉर वाटर क्वालिटी। हम जानते हैं जो हमारी वाटर की क्वालिटी है
हर जगह पर साफ नहीं रहती, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको और बेटर वाटर को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो हम लोगों को है एक बेटर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके, इसीलिए आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी बॉम्बे इन्होंने टाई अप किया यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ताकि बिल्ड किया जा सके एक लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी टू चेक द क्वालिटी ऑफ पोर्टेबल एंड अदर वाटर इन इंडिया। लोटस याद रखेंगे, लोटस क्या है? लो कॉस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट फॉर अर्बन एंड रूरल वाटर सिस्टम्स इन इंडिया। तो ये लोटस रहेगा आपका। तो लोटस इंडो यूरोपियन प्रोजेक्ट क्या है? ये इनिशिएटिव रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलॉन्ग विद यूरोपियन कमीशन, जो कि एम करेगा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाइड अक्रॉस इंडियन हाउस होल्ड्स एंड वर्ल्ड वाइड। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा लोटस। पूछा जा सकता है लोटस ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे एंड यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। 27 दिसंबर को ये हम डे ऑब्जर्व करते हैं। याद रखेंगे, इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एंड कोलैबोरेशन अगेंस्ट एपिडेमिक्स। 2027 में हमने थर्ड एडिशन ऑब्जर्व किया है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक्स का। WHO की मैं बात करूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? टेड्रोस गेब्रेसिस। हेडक्वार्टर रहेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। नेक्स्ट बात करें कुछ स्टेट न्यूज़ की, तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने अभी SBI फाउंडेशन एंड HESCO प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। याद रखेंगे, जो ये आपका SBI फाउंडेशन और ये प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, इनके द्वारा ये क्लाइमेट रेजिलियंट लाइवलीहुड फॉर डिजास्टर प्रोन ऑफ उत्तराखंड, इन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया इन चमोली उत्तराखंड टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे एम क्या रहेगा? टू प्रमोट इक्विटेबल इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द 10 डिजास्टर प्रोन विलेजेस इन द जोशीमठ ब्लॉक ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। यहाँ पे जो मेन एम है, टू अचीव द इम्पॉर्टेंट बैलेंस बाय इनकरेजिंग अ वैरायटी ऑफ लाइवलीहुड सच एज हॉर्टिकल्चर, इको टूरिज्म, बायो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, होम मिनिस्ट्री ने अभी एक अप्रूवल दे दिया है फॉर द नेम चेंज ऑफ 2 प्लेसेस इन यूपी। कौन कौन सी नेम रहेंगी ये है मुंडेरा बाजार को चेंज करके गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चेंज करने की बात की गई टू चौरी चौरा, एंड तेलिया अफगान विलेज का नाम चेंज करके इन ड्योरे डिस्ट्रिक्ट रखने की बात की गई टेलिया शुक्ला। तो मुंडेरा बाजार को चौरी चौरा और टेलिया अफगान को टेलिया शुक्ला नाम रखने की बात की गई। और ये अभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया था यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये जो नाम का स्टेट्स का नाम चेंज करने की बात की गई विल बी थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद अ सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी एक साइन किया एक MOU विद DRDO फॉर इम्प्लीमेंटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट फेस्टिवल की बात करें, ये दिल्ली में बिगिन हुआ। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अप्रूव किया प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन गंगा बेसिन। उजाला स्कीम, यहाँ पे 200 रुपये की सब्सिडी पर सिलेंडर प्रोवाइड की गई, 12 सिलेंडर इन अ ईयर। ठीक है, और इसी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया फॉर 1 more ईयर। बोटेनिकल गार्डन्स ने जो एक एम लेके चले थे कि कंजर्व करेंगे थ्रेटन प्लांट्स को, उन पे 48 करोड़ रुपए खर्च कर किया गया था इन द बजट, और वो रिपोर्ट आई कि ये यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं रहे हैं टू कंजर्व दोज थ्रेटन्ड प्लांट्स। इंडिया विल राइज टू द 3rd स्पॉट बाय द ईयर 2037 एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल। इनके हिसाब से अभी करंटली इंडिया की पोजीशन 5th है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एज पर द रिपोर्ट्स। सेबी एक्सपेंड करेगी कमिटी ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। NTPC एंड टेक्नीमॉन्ड ने अभी एक MOU साइन किया टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी टू डेवलप ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन। L&T ने सिक्योर किया मल्टीपल EPC ऑर्डर्स को इन इंडिया एंड अब्रॉड। टाटा स्टील एंड टुरटुर हाइपरलूप जॉइन हैंड्स टू डेवलप हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। प्रभु चंद्र मिश्रा ने इनको ऑनर किया गया विद अटल सम्मान अवार्ड इन न्यू दिल्ली। अनिल कुमार लाहौटी अपॉइंटेड एज द CEO एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। संतोष यादव को अपॉइंट किया गया NHAI का चेयरमैन एंड सुभाषिष पांडा टू बी द DDS वाइस चेयरमैन। IIT गुवाहाटी, IIT बॉम्बे एंड यूरोपियन यूनिवर्सिटी ने पार्टनर किया टू बिल्ड सेंसर क्वालिटी फॉर
censored for water quality. इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस 2022 कब ऑब्जर्व किया गया? 27 दिसंबर को। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया SBI फाउंडेशन एंड HESCO प्रोजेक्ट। होम मिनिस्ट्री गेव NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द नेम चेंज ऑफ 2 प्लेसेस इन यूपी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, पुष्पा कमल दहाल ये प्रचंड हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के? सेकेंड, एम्परर पेंगुइन्स विच वर सीन इन द न्यूज़ आर नेटिव टू विच रीजन या कंट्री? थर्ड, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इन्होंने इनॉग्रेट किया स्पोर्ट्स साइंस सेंटर किस सिटी में? फोर्थ, इंडिया हैज़ emerged टू स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच नेबरिंग कंट्री? फिफ्थ, विच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया है। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे, क्या आप चाहते हैं हम ये सेशन फ्यूचर में कंटिन्यू रखें, और अगर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या व्यूज़ हैं आपके हमारे इस सेशन के बारे में। ऑल्सो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स, इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी अपलोड करते हैं ऑन डेली बेसिस ऑन वेरियस टॉपिक। यहाँ पर आपको कंटेंट बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में कंटेंट मिल जाएगा। कोई भी वीडियोस अगर आपको सर्च करनी है यूट्यूब पे जाके करंट अफेयर्स बाय विकास राणा के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑन द चैनल अफेयर्स क्लाउड। इसी के साथ साथ आप क्विज भी अटैम्प्ट कर सकते हैं जो कि कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके आप कर सकते हैं इजीली अटैम्प्ट। वहाँ पे आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा एंड उसके बाद ये आप इजीली हमारी क्विज को अटैम्प्ट कर पाएंगे। देखो इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें करने से आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। जिम जाते हैं आप, एक ही बॉडी पार्ट को ट्रेन करते ना ताकि और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो ऐसे ही करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार नोट्स पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए, बार बार क्विज लगाइए, बार बार MCQ क्वेश्चंस करिए, तो आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है टू द बेस्ट हो जाएगा, मतलब आपका कोई नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.